اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، سچ اور حق کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت سب سے پہلی بڑی خبر میں آپ کو سنا دوں۔ الحمدللہ، گزشتہ کل رات بعد نماز مغرب ریاست مہاراشٹر کے اکولا ضلع کے بالاپور شہر میں ہائی وے کو لگ کر لبے سڑک ایک ادارہ ہے، جامع العلوم، جس کے ذمہ دار ہے مفتی اسلم صاحب قاسمی اور ان کے فرزند ارجمند مفتی احمد صاحب وغیرہ۔ گزشتہ کل وہاں پر ایک بہت ہی شاندار پروگرام منعقد ہوا تھا، جس میں پیر طریقت حضرت مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی تشریف لائے تھے بطور مہمان خصوصی اور صدر جلسہ۔ اور اس پروگرام میں مجھے اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی بطور مقرر خصوصی بلائے گئے تھے۔ الحمدللہ، گزشتہ کل کا یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ بالاپور، اکولا، کام گاؤں، پارس اور چتوڑا اور آس پاس کے تقریباً تمام لوگ وہاں پر پہنچے تھے، بلکہ جلگاؤں ضلع سے بھی 3-4 گاڑیاں باقاعدہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچی تھی۔ الحمدللہ، وہاں پر اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا، یہ مجھے موقع دیا کہ حضرت قمر الزما الہ آبادی صاحب کا تعارف کروانے کی ذمہ داری بھی میری دی گئی۔ میں نے حضرت کا تعارف کروایا عوام الناس کے سامنے۔ ویسے تو حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن عوام الناس کے سامنے حضرت کی پیدائش سے لے کر آج تک کی خدمات کا مختصر سا تعارف میں نے پیش کیا، اور پھر حضرت نے اللہ کا شکر ہے خوب دعاؤں سے نوازا، بلکہ اخیر میں حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی ہارون، طبیعت میری بڑی خراب ہے، دعا تو آپ ہی کو کروانی ہوگی۔ تو آخر میں حضرت نے اصرار کے طور پر ضد کر کے کہا کہ ہارون دعا آپ کرائیں، تو اللہ نے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع دیا۔ حضرت قمر الزما صاحب الہ آبادی کی دعائیں ہم سب نے حاصل کی، اور تمام علماء نے ان سے ملاقات کی۔ مفتی اسلم صاحب قاسمی کو جامع العلوم کے اس شاندار اجلاس پر ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اور آج ابھی یوں سمجھیے کہ 10:15 ہے، وہاں پر 11 بجے حضرت قمر الزما الہ آبادی صاحب کی بیعت و ارشاد کی ایک مجلس بھی ہوگی، اور حضرت کے ہاتھوں مدرسے کو ہی لگ کر زمین پر ایک
हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी अमल में आएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद नहीं बल्कि कुछ आतंकियों की संसद हुई थी, जिसमें आतंकी जबान बोली गई थी और इन आतंकियों ने इस तरीके से आतंकवाद मचाया था कि मारने काटने और मुल्क के अमन अमान और शांति को ख़त्म करने का माहौल बनाया था, लोगों को हथियार उठाने की दावत दी थी। आखिर उस धर्म संसद को लेकर, जो धर्म संसद कहना तो उसे शर्म वाली बात है, जिसमें कुछ आतंकी बैठे हुए थे, उस धर्म संसद को लेकर जो हेट स्पीच वहां पर हुई, माहौल काफी गर्माया था, मगर पुलिस ने आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की, जिस पर गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई। ये दिल्ली पुलिस बड़ी एक्टिव है, अगर सामने कोई जुबैर हो, अगर कोई मुस्लिम हो, तो ये बहुत एक्टिव पुलिस है। लेकिन इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि धर्म संसद हेट स्पीच पर तुमने अब तक क्या किया। अदालत ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि बताओ अब तक तुमने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और कितने लोगों से तुमने पूछताछ की। 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की सख्त हिदायत भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। धर्म संसद में आपको बताऊं कि 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, लेकिन एफआईआर 5 महीने के बाद क्यों दर्ज की गई, यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया है और पूछा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने को भी 8 माह हो गए, तो अब तहकीकात कहां तक पहुंची है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का भी कितना घटिया किरदार इस मामले में सामने आ रहा है। आइरादीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शरद यादव की आखिरी रसूमात, आज अंतिम संस्कार की जो आखिरी रसूमात है, आज मध्य प्रदेश में अदा की जाएगी। जनता दल यू के रहनुमा के इंतकाल पर पूरे सियासी हल्के सोगवार हैं। राजधानी दिल्ली में वाक़ उनके मकान में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, राहुल गांधी, राबड़ी देवी समेत दीगर अहम शख्सियात ने हाजिर होकर अहले खाना को पुरसा भी दिया और ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी रहा। जनता दल यूनाइटेड के साबिक सदर, साबिक मरकजी वजीर और मुल्क के कद आवर सोशलिस्ट लीडर शरद यादव का जुमेरात की शब दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल हो गया। 75 साला लीडर लंबे अरसे से अलील थे, बीमार थे। गुरुग्राम के फोर्स मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक बयान में कहा गया कि यादव को बेहोशी के आलम में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और तकरीबन 11 बजे शब वो दुनिया से चल बसे। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ा बयान आया है बड़े आतंकी का। जी हाँ, उसने कहा है कि घरों में तलवारें लटकाएं ये कोई जुर्म नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान आपको याद होगा कि अभी उसने घरों में तेज धारदार चाकू रखने की बात कही थी। जी हाँ, अब साध्वी के उस आतंकी बयान के बाद राम सेना के एक लीडर है, ये लोग राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, शर्म आती है। राम के नाम पर आतंकवादी बने फिरते हैं और आतंकवाद का नंगा नाच खेलते हैं, शर्म आनी चाहिए। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के आतंकी बयान के बाद राम सेना के लीडर ने इश्तियाल अंगेजी की। बीजेपी लीडर और मालेगांव बम ब्लास्ट की मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा के चाकू वाले बयान के बाद राम सेना के इस लीडर का बयान आया है कि घरों में तलवारें लटकाएं, तलवारें रखें, ये कोई जुर्म नहीं है। और इस आतंकी ने यह भी कहा कि तलवारें दूसरों पर हमला करने के लिए नहीं रखना चाहिए, इसको मुल्क और मजहब की हिफाजत के लिए रखना है। यानी इन आतंकियों के ज़हन का अंदाजा लगाएं कि बचने के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई मुल्क के लिए और मजहब की हिफाजत के लिए तेरी क्या ज़रूरत है और तलवारों की क्या ज़रूरत है। हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए खुदा का शुक्र है हमारी सेना काफ़ी है। तलवारें तुम घर में रखाओगे तो क्या आतंक मचाओगे, ये सब जानते हैं। मुत्तालिक ने यह भी कहा कि अगर ऐसा है तलवारें रखना जुर्म है तो फिर हिंदू देवी देवताओं काली, दुर्गा, हनुमान और राम पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना क़ुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। रियासत कर्नाटक के हुबली शहर से हमारे रिपोर्टर रियाज बॉम्बे वाला ने बताया कि गुज़िश्ता कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हुबली के रोड शो में सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी हुई। एक पुरजोश नौजवान ने वज़ीर आज़म की गुलपोशी के शौक में एक सिक्योरिटी का खतरा पैदा कर दिया। वज़ीर आज़म के रोड शो के दौरान ये वाक़या पेश आया। नौजवान बिल्कुल जोश के साथ आगे बढ़ा, मोदी जी की तरफ बढ़ा। रोड शो के दौरान उसने सारी रुकावटें तोड़ दी और मोदी जी की कार की तरफ भागा। ज़राए ने बताया कि इहाते में मौजूद तमाम अफराद की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अरकान ने भरपूर तलाशी ली थी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस इलाके को अच्छी तरह महफूज बनाया था। ज़राए ने बताया कि यह कोई संगीन खिलाफ वर्जी नहीं है। मोदी चलती गाड़ी के रनिंग बोर्ड पर खड़े हुए और पुरजोश हुजूम की तरफ देखकर मोदी जी हाथ हिला रहे थे। सड़क के दोनों तरफ हुजूम था। आप जानते हैं कि मोदी जी को हाथ हिलाने की बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस भी है, आदत भी है। कोरोना के मौके पर भी आपने देखा होगा कि जब कोरोना फैल रहा था तो मोदी जी मोहब्बतों का इजहार करते हुए लोगों को हाथ हिलाकर करीब जाकर उन्हें इलेक्शन पीरियड में भी मुबारकबादियां पेश कर रहे थे। तो यहां पर भी खुद मोदी जी ने हार लेने के लिए नौजवान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़के तक नहीं पहुंच सके। यानी खुद मोदी जी भी चाहते थे कि उनका पुरजोश जो इस्तकबाल नौजवान करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो भी उसका हार लेने की कोशिश कर रहे थे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के मुंबरा से। जी हाँ, आप जानते हैं कि इशरत जहां नाम की एक टीचर समेत 4 अफराद को लश्कर तैयबा के खुदकश बमबार बताकर उनका इनकाउंटर कर दिया गया था। 15 जून 2004 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और SIB के अफसरान ने इनकाउंटर किया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक मजिस्ट्रेट और 3 सरकारी एजेंसियों ने इसे फर्जी इनकाउंटर ठहराया। IB और पुलिस के कई अफसरान इसमें कसूरवार पाए गए। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ फरार हुए और कुछ को गिरफ्तार होने नहीं दिया गया। जी हाँ, लेकिन क्या करें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुजरिमों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। अब मैं आपको बताऊं कि मुंबरा में इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर पर बाकायदा एक लिखी हुई किताब का खुद उनकी अम्मी जान के हाथों इफ्तिताह हुआ, इजरा हुआ। असदुल्ला खान साहब उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम डरने को तैयार हैं, इसलिए डराए जा रहे हैं। यानी उन्होंने इस बात का खुलकर इजहार किया। और मैं आपको बताऊं कि इशरत जहां इनकाउंटर नामी किताब का इजरा उनकी वालिदा शमीमा कौसर के हाथों अमल में आया। इजरा के लिए मुनक्किद एक मुख्तसर तकरीब में हुई तकारीर में इस बात का इयादा किया गया कि इशरत जहां को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई जारी रखी जाएगी। वादी कश्मीर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि इस फिलहाल वादी कश्मीर में बर्फबारी से पूरा निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। वादी कश्मीर में जुमा को दोपहर के वक्त शुरू होने वाली बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी पूरा ठप होकर रह गया। इत्तलात के मुताबिक कई हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। गरमाई राजधानी में 1 इंच से ज्यादा बर्फ खड़ी हो गई है, जबकि दूर दराज और बाराई इलाकों में 2 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। वादी को बैरून दुनिया से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को जुमे की सुबह ही ट्रैफिक की आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया, जबकि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर परवाजों की आवाजाही बुरी तरह से मुतासिर हो गई है। शदीद बर्फबारी की वजह से शिमाली कश्मीर के बारामूला और जम्मू खत्ते के बानेहाल के दरमियान चलने वाली रेल खदमात भी खत्म हो गई है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के अंबरनाथ, उल्लासनगर और थाना से एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि एक बस और ट्रक के दरमियान भिड़ंत हुई, तसादुम हुआ, जिसमें 10 लोगों के हलाक होने, 34 लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं और इन 34 में भी कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से मरने वालों को 5-5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया है। हादसे की इंक्वायरी के आदेश हुक्म जारी कर दिया गया। मरने वालों का ताल्लुक अंबरनाथ, उल्लासनगर और थाना से बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में यह वाकया पेश आया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा नासिक शिरडी हाईवे पर पेश आया। बताया जा रहा है कि बस में 50 अफराद सवार थे जब सब साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखचे उड़ गए। मौके पर मौजूद मकामी लोगों ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मरने वालों में 6 औरतें, 2 मर्द और 2 बच्चे भी शामिल हैं। जोशी मठ के हालात को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जोशी मठ अब 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। इसरो की जो सैटेलाइट फोटो सामने आई मंजर आम पर जमींदोज होने का खतरा बरकरार है। उत्तराखंड के जोशी मठ शहर पर गर्क हो जाने का, डूब जाने का खतरा, खत्म हो जाने का खतरा बरकरार है और शहर सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस चुका है। इसरो ने तस्वीर जारी करते हुए कहा कि 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के दरमियान शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि कोरोना काल में, कोरोना के मौके पर 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। कोरोना सेंटर में तिब्बी आलात की खरीदारी में घपला हुआ है। बीएमसी अफसर को ईडी ने नोटिस भेजा है। यानी ये मुंबई की खबर है। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया था कि कोरोना के दौर में कोरोना सेंटर में तिब्बी आलात की खरीदारी में बड़ा घोटाला हुआ। इस सिलसिले में क्रेट सोमिया ने दावा किया है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक आला अफसर को ईडी की तरफ से नोटिस मिला है। पूरा घोटाला तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वहीं पर कोरोना को लेकर यह भी खबर आ रही है कि दिल्ली हुकूमत, जी हां, दिल्ली हुकूमत 14 कोरोना वॉरियर के खानदानों को 1-1 करोड़ रुपए एजाजिया के तौर पर देगी। दिल्ली हुकूमत कोरोना वबा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 14 कोरोना वॉरियर के खानदानों को 1-1 करोड़ रुपए एजाजिया देगी। जुमा को दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की सदारत में ये बात सामने आई है और मंजूरी मिली है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।